Hey techies, welcome back to Techie Help. So today we will cover all about Git and GitHub. Okay, so if you are a student and learning to code or dreaming of tech jobs, then this video is for you. Because today I'll not just talking about Git and GitHub, I'll telling you how can literally shape your career using Git and GitHub. Okay, so most of the students ignoring Git and GitHub in the beginning, but truth is companies today check your GitHub profile before they looking at your resume. Sound crazy, like? Okay, so but it's a truth. Whether you are applying for internship, remote jobs, and freelancing, your GitHub is a portfolio. Okay, because all your code display on GitHub, so the GitHub is most important in your career. Okay, so by the end of this video I'll know exactly how learning Git and GitHub and GitHub can open real career opportunities like working with startups, contributing to open source, building a strong developer profile, and even getting a notice by recruiters from the tech companies. Okay, so if you are serious about coding and want to stand out in your placement, freelancing, or remote tech jobs, this video can be a game changer. Okay, so let's dive into unlock your tech career path using Git and GitHub the right way. Okay, so without delay, let's get started with your Git and GitHub series. Okay, so मिलते हैं लैपटॉप पे. So without delay, let's get started with your PPTs. Okay, so in this video we will cover all about Git and GitHub as you know in the intro video. Okay, so without delay, let's get started. Okay, so before deep dive into our code, we will discuss who you teach Git and GitHub. Okay, so hey everyone, my name is Amit Kumar and I am the founder of Techie Help as you know, and I am also mentor of GSOC. GSOC not mean Google Summer of Code, it's Girl Script Summer of Code 2024. Okay, and in this year I am selected for as a project admin for Social Summer of Code 2024 to 2025. Sorry. Okay, so I have a good knowledge about Git and GitHub, so don't worry about that. We will all discuss in theory and also we discuss about practical and see how it works behind the scene. Okay, so don't worry about the code. Okay, so what is Git? Okay, so what is Git? Git means Git is a CLI. CLI means command line interface. Okay, it means a snapshots of each and every version of code. That means if you write anything in your code and you use Git, so your code is like अगर आप कोई भी अगर कोड लिख रहे हैं आपने अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिट से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, गिट इनिशियलाइज्ड है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें हम चेंजेस कर पाए हैं, किस किस फोल्डर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. ठीक है, एंड गिट का यूज करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें मिलता है वो है कि अगर हम गलती से कोई भी फाइल हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो अगर गिट इनिशियलाइज रहता है तो उस प्रोजेक्ट को हम रिवेस कर सकते हैं. ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हम रिवेस कर सकते हैं गिट कमांड से. ओके, वी ऑल सी इन दिस वीडियो कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिलीट हो जाता है तो उसको हम रिवेस कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में. ठीक है, सो इसका जो ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी कोड लिखते हैं ना उस कोड पे आपका ऑथर नेम होता है. मीन्स आप जिस भी कोड पे आप हॉरर करेंगे ना कर्सर से तो उस पर आपका नेम एंड ईमेल आईडी लिखा हुआ रहेगा. अगर आपका कोड कोई भी यूज कर रहा है,
ठीक है, तो उस कोड में आपका ऑथर नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑथर नेम ही सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज आई एम विथ यू। ओके, so Git is like an all-rounder in a team. If you mean mess up with Git is their cover up. Git can back in time, can save your work repeatedly, many more. It is by far most used tools by developer. Okay, it means कि जो गिट है वो मोस्टली मतलब जितने भी डेवलपर्स हैं ना, अपने बिना गिट के तो रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गिट नहीं आता है ना तो आप भूल जाइए कि आपका जॉब लगेगा, इतना इम्पोर्टेंट गिट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो अब देखते हैं कि हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो गिट जो है हमारा वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो क्लाउड बेस्ड होता है। ठीक है, so version control system is a tool that track your all changes the file over the time। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कोई भी अगर स्पेसिफिक फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एक मैसेज देके कमिट कर दे रहे हैं कि ये फाइल हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप उस किसी भी कोड पे फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपका बता देगा कि ये फाइल ये वर्क करता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, it is essential for collaborative project, ensure that all team members work on the latest version, avoid conflicts and maintain a history of edits whether using a tool like Git or cloud based platform। what it means, so अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा है, ठीक है, छोड़िए बड़ा नहीं है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो भी 4 या 5 टीम मेंबर्स हैं तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, बट द प्रॉब्लम इज कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं अपने कोड में, अगर आप उसमें हैशटैग नहीं दिए हुए हैं तो आपके टीम मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि ये कोड किसके लिए लिखा गया है, ये फाइल जो है ये क्या वर्क करती है। ठीक है, तो हम गिट का यूज करके उस फाइल को कमिट कर देते हैं कि ये फाइल हमारा ये काम करता है। ठीक है, ओके, so VCS means version control system। VCS provide a streamlined way to handle updates, rollbacks and collaboration effectively। okay, I hope you all understand। if you not understand please go on back and see this again। okay, and also comment on this। okay, so did you know means many of the students are confused about Git are same and GitHub are same। so Git and GitHub are not same, it's a totally different, but without Git we not use GitHub। okay, so mainly हम लोग जब GitHub यूज करते हैं ना तो वो हम Git कमांड से ही अपने सारे के सारे कोड को पुश करते हैं। ऐसे हम GitHub बिना Git का यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो Git है ना वो हमें पूरा आसान कर देता है कोड को कैसे सेपरेट करना है, हमारे VS कोड से डायरेक्ट GitHub पे कैसे पुश करना है कोड को। ओके, एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सब हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, Git के हेल्प से। ओके, अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हम Git, अगर आपके सिस्टम में Git इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप Git इंस्टॉल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। ओके, सो ओपन योर क्रोम ब्राउजर एंड write down Git download। okay, and click on this first link। okay, so here you can see all the version of the Git that you need to install। if you are using Mac Linux you go through this। I am currently using Windows। okay, so I have simply go for Windows, so click on this and choose my system। okay, so my system is Windows 64 setup, click on this and it's simply installed in your system। okay, that's it's installing, I have already installed it, so I skip it। okay, so now I'll come on our CMD। ओके, सो इफ़ यू इंस्टॉल द गिट, जो भी मीन्स उसमें ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत आता है तो आप कनेक्ट करना टॉपमेट से या फिर आप कमेंट करना, हम हेल्प कर देंगे। ठीक है,
अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड हो गया होगा ना, तो आप अपने सर्च बार में आए, ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं गिट। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं एक आ रहा है गिट बाश करके, ठीक है। तो ये इंस्टॉल अगर है ना आप में, तो आप समझ लें कि गिट इंस्टॉल्ड है। ओके, अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। ओके, सो अगर आप चेक कर लिए हैं कि आपके सिस्टम में गिट बाश इंस्टॉल्ड है, तो बहुत बढ़िया, आपका सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है चेक करने का सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो हम जाएंगे अपने CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, एंड इस पे लिखेंगे गिट -v वर्जन। ओके, एंड प्रेस इंटर, वर्जन, प्रेस इंटर, and here you can see git version 2.42.0.windows.2. it's already installed in my system. Okay, now I closed it. Okay, so after you install, you open your git bash in your system. Okay, so I'll open my git bash now. I'll zoom it for better understanding. Okay, so I hope you see well. Okay, because I okay, so अगर देखिए, सबसे पहला जो हमारा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का जो जर्नी होता है, उसका हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें जितने भी गिट्स के कमांड है ना, वो हमको आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन वर्क जो होता है, जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, उससे हमारा, जैसे कि हमको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, अगर जैसे कि हम रिएक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वैसे ही VS कोड में बन जाता है फोल्डर्स, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम HTML CSS या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसमें रिएक्ट जैसा कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के नहीं देता है, हालांकि आप रिएक्ट में भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक टैब ओपन कर सकता हूँ और लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले एक कमांड होता है मेक डायरेक्टरी करके, ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी से हम क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी का मतलब होता है कि एक हमको फोल्डर बना के दो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने कमांड लाइन CMD से मीन्स गिट का यूज करके कैसे हम एक पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं एंड उसमें कुछ भी रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है कमांड, वो आता है हमारा मेक डायरेक्टरी। ओके, सो आई सजेस्ट कि आप जब भी ये वीडियो देखें, ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ अपने सिस्टम को ऑन करें एंड वीडियो को पॉज करके हम जो भी बता रहे हैं वो आप करें, ठीक है। दिस इज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हाँ चलिए देख लिए, हो गया, दिमाग में फिट हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, आप भूल जाइएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, तो आप 10 फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देखें, ठीक है। एंड हम सजेस्ट करेंगे कि आप मीन्स मैनुअली नहीं करें कुछ भी काम, क्योंकि अगर आपको CMD नहीं आता है, कमांड्स नहीं आता है, तो कंपनी में बहुत सारे दिक्कत आने वाले। कितने आप कमांड मैनुअली कर पाओगे? अगर बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो आप कितना कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हमको कमांड आने चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हम बनाते हैं मेक डायरेक्टरी, MKDIR स्पेस, अब जो भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें गिट ट्यूटोरियल्स, ओके, एंड प्रेस इंटर। हियर यू कैन सी नाउ हमारा जो गिट ट्यूटोरियल्स है वो बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, एक और हमारे पास कमांड होता है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप नोट डाउन करते जाएं कमांड्स को, ठीक है, और हम इस कमांड्स का लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो डायरेक्टरी हम बनाए हैं, मीन्स हम कमांड में कहते हैं डायरेक्टरी फोल्डर को, तो इस फोल्डर जो हम फोल्डर बनाए हैं गिट ट्यूटोरियल्स, अब उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो CD मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी। जो भी हम डायरेक्टरी बनाए हैं उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाना है, तो हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे, ठीक है। एंड ये जो है हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे, सॉरी स्पेस कॉपी नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, Ctrl+C,
ओके कोई नहीं, cd git tutorials and press enter, and here you can see minzw64 and git tutorials. ओके अब हम git tutorials के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हमको git कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हमें कोई भी अगर फाइल बनाना है, ठीक है, तो इसका दो मेथड है, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो हम उसमें यूज करते हैं echo, ठीक है, एंड इसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके लेकिन बेस्ट जो अप्रोच होता है वो होता है टच करके, ठीक है। तो हम अब बनाते हैं एक फाइल, सो टच, एंड इसमें बना देते हैं कोई भी, जैसे हमको टेक्स्ट फाइल बनाना है, ठीक है, जैसे रेडमी बनाना है, रेडमी, ठीक है, तो हम रेडमी बनाते हैं README.MD, आप जानते होंगे .md, redmi.md। ओके अब इंटर कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, हमारा गिट ट्यूटोरियल्स बन गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि ये बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो इसको ओके हियर यू कैन सी, आई विल ओपन माय folder structure, and here you can see here I build a folder git tutorials, and in my folder here you can see a git tutorials. If I zoom, able to zoom or not, just see, and just a second. Okay, here you can see the git tutorials are available, so open this. Okay, and here you can see we make a redmi.md. if I open this, no anything else in this file. Okay, so what I'll do, I read write with the help of git command. Okay, so for a better understanding I full screen it. Okay, देखिए अब जो भी आप फाइल बनाए हैं, ठीक है, उस फाइल के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, अगर गिट कमांड के अंदर, गिट कमांड के थ्रू, ठीक है, अगर रेडमी फाइल है तो कुछ भी अगर उसमें हमको लिखना है तो उसमें हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर ले, नैनो, NANO, नैनो, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिख दें नैनो, ठीक है, एंड हम अपना फाइल का नेम redmi.md, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसको हम जैसे प्रेस इंटर करेंगे ना, देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया कि हम यहाँ कुछ भी अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि दिस इज फॉर git tutorials by Amit Kumar. Okay, here you can see I'm write down inside our redmi.md file. Okay, the most important thing now, I please write down these steps. So to save these steps we use of commands. Okay, 3 commands we'll use for this. Okay, first is control plus O. I suggest you write down right now. Control plus X for save the file and press enter, and then control plus X for exist. Okay, so I'll press control plus O, and here you can see file name to write readmd.md. If I yes, I hover this, here you can see file name. Okay, and when I press enter, here you can see one wrote one line. Okay, and if I press control X, and here you can see we inside the app. Okay, okay, so here you can see I'm back to my git bash. Now let's see my file are saved or not. So I'll refresh it, and when I open this, let's see what's here. You can see this is for git tutorials by Amit Kumar are written. Okay,
So that's the feature of git command you use to write anything in your folder and file. Okay, so this is the magic. Now I closed it and I open our bash, and now make a separate means fully folder structure to write your project. Okay, so I'll make a git tutorials folder and write down readme.md file, and when I make a index.html file, so I write down touch index dot html, press enter. I write down touch style dot css, press enter. When I write touch touch script.js, press enter. And now our folder structures are built. Here you can see index.html, style, css and script file. Now I'll make a folder, another folder of in git tutorials, and make in this folder a new file. Okay, so now let's see. So अब हमें क्या करना है, हम git tutorials फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब git tutorial फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हमको बनाना है, ठीक है। जैसे कि हमें कोई भी अगर पिक्चर रखना पड़ता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक बनाते हैं या एसेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पब्लिक फोल्डर बनाएंगे, उस पब्लिक फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर बनाएंगे, एंड एसेट्स फोल्डर के अंदर कुछ भी इमेज डाल देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया समझ में? कमेंट में लिखो डन, ठीक है। प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो अब क्या कर सकते हैं, फिर से वही बात, मेक डायरेक्टरी करेंगे, एक फोल्डर बनाना है हमको, ठीक है भैया, समझ गए, ठीक है। मेक डायरेक्टरी बना लिया, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, पब्लिक फोल्डर, सिंपली कर देंगे इसको पब्लिक, ठीक भैया। अब इसको कर दे एंटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम ऑलरेडी गिट ट्यूटोरियल्स के अंदर हैं, ठीक है भैया। अब हमको कहाँ जाना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर बनाना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, cd कमांड, याद रखना cd, चेंज डायरेक्टरी, ओके cd। अब हमको जाना है पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि हम जानना है, देखो सिंपल सा है, कोई बेसिक रूल नहीं है, कोई एडवांस रूल नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फंडा, देखो हम क्या किए हैं, गिट ट्यूटोरियल्स नाम से एक फोल्डर बनाए हैं, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिए पब्लिक नाम से। अब उस पब्लिक के अंदर हमको जाना है और एक फाइल बनाना है, ठीक है। तो उस पब्लिक के अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम गिट ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या किए थे, cd किए थे कि भाई हमको इस डायरेक्टरी में नहीं रहना है, क्योंकि हमारा मेन GW था भैया, हमको उसमें नहीं रहना, हमको तो जाना है गिट ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। तो हम cd करके गिट ट्यूटोरियल्स में चले गए। अब हमें क्या करना है, अब हमको जाना है पब्लिक फोल्डर में, ठीक है भैया। तो पब्लिक फोल्डर में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही है cd कमांड, ओके। नाउ प्रेस एंटर, एंड हियर यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिट ट्यूटोरियल्स पब्लिक, ओके। अब हम कहाँ पे हैं, देखो यहाँ पे लगा हुआ है स्लैश, ठीक है। और जहाँ भी अभी स्लैश लग जाए ना, स्लैश तो मतलब होता है कि हम गिट ट्यूटोरियल, स्लैश का मतलब होता है वहाँ से हमारा फोल्डर चेंज हो गया। अब जो भी कुछ हम लिखेंगे उस स्लैश के बाद वाले फोल्डर में लिखा आएगा। तो गिट ट्यूटोरियल्स के बाद में हमारा एक स्लैश है, तो उस स्लैश के बाद क्या है, पब्लिक है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अब पब्लिक फोल्डर के अंदर हम एसेट्स फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो अब बनाओ मेक डायरेक्टरी एसेट्स, ASSETS एंड प्रेस इंटर। अब हमारा एसेट्स बन गया, ठीक है। अब हमको एसेट्स के अंदर में लिखना है, क्या लिखना है कि हमको कोई भी इमेज दे देना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, अब फिर से वही बात, हमको पब्लिक में थे, अब हमको एसेट्स के अंदर जाना है, ठीक है। चलो एसेट्स के अंदर जाते हैं।
तो सी डी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम कर दिए ASSETS, ठीक, प्रेस इंटर। एक सेकेंड्स, ओ सॉरी, स्पेलिंग एरर। ओके, CDASSESTS एंड प्रेस इंटर। अब देखो, अब कहाँ पे हम, पब्लिक के बगल में एक स्लैश लग गया। स्लैश का मतलब वहाँ से ख़त्म। अब हम एसेट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे, तो भैया एसेट्स के अंदर क्या रहता है, तो एसेट्स के अंदर तो रहता है अपना इमेज। तो हम कमांड का यूज करके इमेज कैसे डाल सकते हैं वो भी देखेंगे, डोंट वरी, हम है ना भैया। आइए, आपको टेंशन क्यों लेना है, चलिए देखते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी I am using a cp command. Okay, so if you insert any image in your folder, okay, simply use cp and paste your path of the image, okay, and it will copy in your file. Okay, so now I'll see it's copy or not. So I'll zoom it. Okay, so here you can see the folder. So I'll open it. Here you can see the assets we are building in. I'll open, and here you can see git thumbnail. Okay, and I move it. Here you can see I am giving it git thumbnail.png. Okay, so that is working. सो अगर ये अगर कमांड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टाइप का कंटेंट सीख पाएँ। ओके, चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि हम गिट कमांड के अंदर कैसे क्या राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर कैसे बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब द मेन प्रॉब्लम इज हम कहाँ पे अभी। ठीक है, तो अभी जो है हम हैं वो है हमारा गिट ट्यूटोरियल्स के अंदर हम पब्लिक फाइल के अंदर हैं, सॉरी पब्लिक फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, एंड पब्लिक फोल्डर में एसेट्स फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है भैया, प्रॉब्लम ये है अब हमको दूसरा फाइल बनाना है, लेकिन हम तो उधर हैं, उधर से हम आए वापिस कैसे, प्रॉब्लम ये है। चलिए, तो अगर उधर से हमको वापस आना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका भी ट्रिक है, चलिए देखते हैं। कोड लिख दिए, डॉट। ठीक है, प्रेस करो इंटर, एंड लेट्स सी इट्स नॉट वर्किंग। ओके, because I am using 3 dots because it's a mistake. We using 2 dots to back our original folder. Okay, so code dot enter. Why it's not working, let's see, just wait a second. It's open a VS Code. Okay, so just wait a second. Okay, sorry guys, we by mistake I am using code dot. So code we use to open VS Code. Okay, so we using a command change directory. Okay, so move to our original folder structure. Okay, so if you know how to come to the folder, please comment. Okay, now see how we come, because we move to 2 steps, like we in 3 folder structure, means parent of parent folders. Okay, means git tutorials is our main folder, and public is our parent folder, and assets is parent of parent folder. Okay, so now what will we do, change directory, just a second. Okay, change directory dot means dot means मुझे एक स्टेप पीछे आना है। ठीक है, तो मुझे एसेट्स हटा के पब्लिक तक आना है, तो डॉट आना है। ठीक है, तो प्रेस करेंगे इंटर। अब देखो, अब हम कहाँ पे आ गए, पब्लिक तक आ गए। अब हमें क्या करना है, अगर हम फिर से डॉट करें तो नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मुझे 2 लाइन्स तक आना है। ठीक है, गो बैक टू 2 लाइन, सॉरी। अब हम क्या कर सकते हैं,
और फिर से हम कोड लिख रहे हैं, सॉरी यार। क्या आदत से लाचार आदमी। जैसे जब आप ज़्यादा कोड करने लगते हो ना, कोड कोड कोड, तो वो आदत बन जाता है। सॉरी गाइज। ओके, जस्ट फन। ओके, सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ओके, इस कमांड को यूज़ करो। अब आपने डायरेक्टरी फाइल में पहुंच जाओगे एंड प्रेस करो इंटर। ओके 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 ओके, तो ये मुझे ओके 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 ओके, तो ये मुझे पूरा फोल्डर ही बैक कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी सी डी डॉट डॉट यू यूज करना था। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, सो अगर हम इसको करें सी डी गिट ट्यूटोरियल्स GITTUTORIALS एंड करें प्रेस इंटर। अब हम गिट ट्यूटोरियल्स के अंदर है। ठीक है, अब हमको ओपन करना है, VS कोड में ओपन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप तो जानते ही हो, कोड डॉट जो पहले किए थे। सो कोड डॉट प्रेस इंटर and now it's open our VS code. Here you can see in my system it's open a VS code. So I'll open it and I full screen, and here you can see index.html, readme.md, script.js, style.css and public folder. And here you can see public के अंदर हमारे assets हैं, assets के अंदर हमारा thumbnail है। Here you can see okay, so this is the most important feature that's help you in your open source contribution, and it is also help to make sure to build a structure type of folder, okay, without doing manually. okay, so यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। तो आप लोगों का सवाल होगा कि भैया आप तो गिट पर आ रहे हो, गिट में आप ये क्यों बता रहे हो, मुझे गिट रिलेटेड ही बताओ। तो ये गिट का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा गिट कमांड का यूज करके, ठीक है, तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने प्रॉपर, ओके, रिफ्लेक्स करने के लिए। क्योंकि अब तुम्हारे कोई भी अगर फ्रेंड है, वो अगर मैनुअली करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, तो यहाँ पे आओगे, 2 लाइन लिखोगे, प्रेस इंटर, और ये फोल्डर रेडी। That sound crazy, right? Okay, so now I'll come to our VS code. Okay, so I'll write down code dot open. Now it's open VS code. Okay, and here you can see my HTML file. For demo purpose I write some file here for make sure to मीन्स अगर आपको कुछ समझाना है ना, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, वो पहले बना लेते हैं। ठीक है, बना के मिलते हैं आपसे। ओके, चलिए आपके लिए हम एक फोल्डर बना दें, मीन्स एक कोड तैयार कर दिया है जिसमें हम आपको समझा पाएंगे कि एक्चुअल में अब हमारे कोड में कैसे वर्क करेगा गिट। ओके, सो लेट्स सी जस्ट फॉर अ ट्रायल कि मुझे आता है कि नहीं, कैसे बना है, जस्ट फॉर अ ट्रायल। तो देख सकते हैं एक सिंपल सा वेबसाइट है जिसमें गिट के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। ओके, जस्ट फॉर ट्रायल। ओके, नाउ द मेन थिंग कि अब जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस पे हम गिट के थ्रू वर्क कैसे करेंगे। ओके, इसके थ्रू अब हम वर्क कैसे करेंगे गिट पे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने पीपीटी में। ठीक है, और कुछ थ्योरी पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, अपने गिट को इनिशियलाइज करेंगे, अपना यूज़र नेम, अपना नेम, ताकि एक हमारा आइडेंटिफाई बन जाए। अगर जब भी हम अपना कोड यहाँ हॉरर करें तो हमारा नेम शो हो। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करके देखते हैं। ओके, सो आई विल ओपन द गिट चीट शीट, इट्स गिवन बाय ऑफिशियली GitHub. I'll share the link in the description box. You can access from that. Okay, so here you can see Git is a free and open source. We will read this. Okay, installation guide, Windows, Mac links are available and all the things are here. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा अपना Git को सेटअप करना है। ठीक है,
गिट को पहले हमें सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, ओके, यूज़र डॉट नेम, हमारा यूज़र नेम क्या होगा, उसके बाद में हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या होगा, ठीक है। सिंपली इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी। अब चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में एंड इसको कर देते हैं कंट्रोल भी, ठीक है। इसको कर देते हैं हम फुल स्क्रीन एंड एरो की मदद से हम अपना इसमें नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है बट आप लोगों के कारण करना पड़ेगा ना। चलिए हम इसको कर देते हैं अपना, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ आके करते हैं प्रेस इंटर, हमारा नाम लिखा गया, ठीक है। अब हम अपना ईमेल आईडी सेट करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने गिट शीट पे, जस्ट सेकेंड, ओके। हियर यू कैन सी गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, आपका ईमेल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कर लिया, इसको हम कॉपी, आ गए अपने इसमें एंड इसको कर दिए पेस्ट एंड आपने इसमें अपना ओरिजिनल जो भी आपका ईमेल रखना है वो अपना डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं अपना एक फेक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। बाद में मैं चेंज कर लूँगा, कोई नहीं। अब इस पर रिप्लाई मीन्स मेल मत करना क्योंकि ये ओरिजिनल मेल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कनेक्ट ही करना है तो आप लिंक्डइन पे कर लो, टॉपमेट पे कर लो, ओके। ये फेक मेल है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा इसलिए बता दिए हैं। ऐसे मेल चाहिए तो हम दे भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप कमेंट करें हम भेज देंगे, ठीक है। @gmail.com, ठीक है। अब इसको डबल कोट के बाहर जाते हैं, इंटर करते हैं। अब हमारा ये सेट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चीट शीट पे वापस एंड हियर यू कैन सी सेट ऑटोमेटिक कमांड लाइन फॉर कलरिंग, सो दैट इज़ नॉट फॉर यू, ये अपने लिए नहीं है। उसके बाद आ जाएगा अपना सेटअप एंड गिट init configure user information initialization and closing repositories. So we all see this, okay, don't worry. Git log, git branch a, follow, defense, so git full, okay. So now come on the VS Code, okay. Now open your terminal, open new terminal, okay, ओके। सो अब हम अपने गिट ट्यूटोरियल्स के अंदर है। अब हमारा एक्चुअल वर्क चालू हो रहा है गिटहब पे, सॉरी गिट पे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उसको गिट से इनिशियलाइज कर देंगे। भैया इसका मतलब क्या हुआ, आप यही बोलोगे ना कि हम गिट से इनिशियलाइज क्यों करें, गिट अपने जो फोल्डर है उसको हम गिट से इनिशियलाइज क्यों करें, ठीक है। तो गिट से इनिशियलाइज इसलिए करना है आपको ताकि आपका जो भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है, अगर एक बार आप गिट से इनिशियलाइज्ड हो गया तो आप अपने फोल्डर में गिट अपने जो भी चेंजेस किए उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप क्या क्या उसमें नया ऐड किए हैं वो हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर गलती से कोई भी फाइल आपका डिलीट हो गया उसको ला सकते हैं, या फिर कोई गलत मैसेज कर दिया उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब देखेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। तो गिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे तो पढ़ाते 10-15 घंटा का वीडियो भी हो जाए तो ख़त्म नहीं होगा, बट मैं इसमें इतना ही आपको बताऊंगा जितना आपको एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड आपके करियर में हेल्प करे डेली लाइफ बेसिस पे, ठीक है। एंड अगर ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भैया आप गिट पे एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मैं 5-6 घंटे का सेपरेट गिट पे ओनली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, सो बिना बकचोदी के चलते हैं। चलो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमको गिट को इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले हमारा कमांड क्या होगा, पहले तो आप वर्जन चेक कर लो अपना, ठीक है। तो गिट --- वर्जन, प्रेस इंटर, वर्जन चेक कर लिए, इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब हम अपना गिट इनिशियलाइज कर लेंगे, गिट इनिट। गिट को इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो आपका गिट इनिट, ठीक है। अब करो प्रेस इंटर। अब देखो हमारे जितने भी फाइल्स है वो ग्रीन हो गए, हुए कि नहीं हुए, ठीक है। हमारा जितना भी फाइल है वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ,
भैया इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, जो फाइल है, जो प्रोजेक्ट है, वो गिट के साथ अटैच्ड हो गया है, गिट के साथ इनिशियलाइज्ड हो गया है। ठीक है। एंड अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कमिट कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर किसी भी अगर स्पेसिफिक फाइल में मुझे कुछ मैसेज करना है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो वो हो गया हमारा गिट ऐड। ठीक है, ऐड मतलब गिट के अंदर इस फाइल को ऐड कर दो। ठीक है। अभी ये हमारा ऐड नहीं है, क्यों? अगर अभी हम आपको गिट का स्टेटस दिखाएं, ठीक है, अगर स्टेटस देखते हैं, गिट स्टेटस नाम के एक कमांड होता है जिसका यूज करके आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा फोल्डर जो है वो गिट के साथ इनिशियलाइज्ड है। ओके, अगर हम प्रेस इंटर करें तो हियर यू कैन सी ऑन द मास्टर ब्रांच नो कमिट एट एंड अनट्रैक्ड फाइल। ओके, अनट्रैक्ड फाइल मीन्स आपका जो भी फोल्डर है ना उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा जैसे कि हम गिट इनिट किए हैं तो वो हमारा कौन कौन सा इनिशियलाइज्ड है वो बता रहा है कि ये हमारे फाइल जो है वो इनिशियलाइज हो गए हैं, बट इसमें कोई भी मैसेज नहीं है। हम इसको अनट्रैक्ड है, इसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम किसी भी फाइल को अभी गिट के अंदर ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, जब तक हम गिट में ऐड नहीं करेंगे तब तक वो हमारे फाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है। ओके, चलो अब हम पहले एक फाइल को ऐड करके देखते हैं। अब index.html को ऐड करके देखते हैं। तो आओ अपने कमांड लाइन पे। ठीक है, अब करो गिट ऐड। अब यहाँ पे ऐड के बाद अपना एक्चुअल जो फाइल है जिसको आपको लिखना है, जिसमें आपको मैसेज डालना है कि किस चीज़ का है, ताकि आपको टीममेट्स को पता चले। ठीक है, तो वो उसका आप नाम दे। तो चलिए हम नाम दे देते हैं index.html। ठीक, अब इसको हम कर दे प्रेस इंटर, हो गया। ठीक है, हम आपको ये बात सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी हम लिख रहे हैं वो आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप भूल जाएंगे। ठीक है, याद कराते रहते हैं आपको, आप भूल जाते हैं। ठीक है, आप प्रॉमिस करोगे भैया नहीं भूलेंगे, कमेंट करोगे भैया आई प्रॉमिस मैं नहीं भूलूंगा, या फिर मैंने नोट्स बना लिया है। ठीक है, चलो अब हमारा गिट जो है वो ऐड हो गया है। ये कैसे पता चलेगा? फिर से हम गिट स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर गिट का स्टेटस चेक करें, इंस्टाग्राम का स्टेटस नहीं, गिट का स्टेटस। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ देखो नो कमिट एट। ठीक है, क्योंकि हम कमिट किए ही नहीं है। चेंजेस टू बी कमिटेड, न्यू फाइल index.html आया। अब यह आ गया। यहाँ पे क्या था? अनट्रैक्ड फाइल। जब तक हम ऐड नहीं किए थे तब तक ये अनट्रैक्ड था। अब हम इसको ऐड कर दिए तो ये हमारा index.html, क्योंकि हम स्टेटस नहीं यहाँ पे ऐड पे index.html किए थे तो ये आ गया। ठीक है, तो भैया अब हमारे टीममेट्स को कैसे पता चले कि हम index.html फाइल जो है वो किसके लिए बनाए हैं, कौन से वेबसाइट उसमें है। ओके, सो चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं। तो वो कैसे होगा? गिट कमिट हाइफन एम मिस मैसेज डबल कोट ओपन। अब इस डबल कोट के अंदर आप अपना जो भी मैसेज देना हो, मैसेज कुछ भी मत देना यार, मतलब मीनिंगफुल हो, जो आपके प्रोजेक्ट को समझ में आए, जो आपके टीममेट्स को समझ में आए, जो टीचर्स को समझ में आए। ठीक है, तो मैसेज के अंदर में क्या डालना है वो देखो। ये मेरा जो है वो है हमारा गिट ट्यूटोरियल्स के बारे में, तो मैं इसमें डाल देता हूँ कि गिट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, गिट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट एंड डबल कोट को कर दिए क्लोज एंड करेंगे इंटर। ये हो गया। एंड देखो ये बता क्या रहा है कि मास्टर के रूट में गिट ट्यूटोरियल वेबसाइट ऐड हो चुका है। ये कैसा पता चलेगा भैया?
वही बात, फिर से स्टेटस चेक कर लो ना गिट का, क्या दिक्कत आ रहा है। ओके, सो अब हमको फिर से चेक करना है, तो हम लिख दिए गिट स्टेटस, कर दिया इंटर। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, ऑन मास्टर ब्रांच व्हाट्स हैपनिंग, गिव मी अ जस्ट अ सेकेंड, आई विल सी on master branch untracked file. Okay, git add file include all will be committed. Okay, nothing added to commit, but untracked file present, git add to track. Okay, now we will adding, here you can see we will add a git tutorial website, and here you can see it's commit in root, and it's give a git tutorial website. Okay, and after this we will add to all these file into git. So what will we do, I'll separate it, just a second. So git add space dot, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे गिट मेरे फोल्डर में जितने भी फाइल है, फोल्डर है, सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब करें प्रेस इंटर, दैट रीडमी इज रिप्लेस्ड बाय CRF नेक्स्ट टॉम। ओके, एंड नाउ हियर यू कैन सी विल git add and dot it add to all file to our git. Okay, and now we will check git status, and now it's we on master branch and change to be committed. Okay, and git restore stage file, and here you can see it's all file are shown in green. Okay, so now it's now I'll trackable. Okay, so now let see the history, what will we do in the our code. So now will we check git log and press enter. It's give git log means you check using this command of history. Okay, so it's give author name and date also, and here you can see why I am set your git with your name and email. Here you can see when I see my git log means my git history, here you can see the author name अमित एंड अमित जो हमारा मेल था, एंड डेट है, एंड हमने अभी तक क्या किया है, गिट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट को क्या किया था, कमिट किया था। ठीक है, अगर गिट कमिट ट्यूटोरियल्स में अगर और कुछ भी हम ऐड कर दें क्या दिखाएगा, चलिए देखते हैं। तो अगर इसको हम कर दें गिट कमिट -m and double quote open and just for write yes double quote, and here you can see its changes. Okay, and now I'll check git status, press enter, here you can see the status. Okay, and now I will check git log and press enter, here you can see get tutorial, and yes, 2 commits are there. So here you can see the yes, and here you can see the git tutorials website. Now if you use the git log command, it's given a details. Okay, so one more command are available to check in one line, that's our git hyphen one line. Okay, press enter, and just a second, oh sorry, we are not at git log. Okay, so git log hyphen one line means हमारा जो भी हिस्ट्री है उसको एक लाइन में दे दो, and here you can see it's done. Yes, and git tutorial website. Okay, so this is all about git. Okay, एंड जो भी हमारा पुल रिक्वेस्ट है, मर्ज है, हम गिटहब पे कैसे वर्क करते हैं, ये सब को हम गिटहब के साइट पे देखेंगे। ठीक है,
तो ये तो हमारा बेसिक कमांड था जिसका यूज करके आप इनिशियलाइज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। एंड गिट में हम गिटहब जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे गिट कमांड जैसे हो गया अपना गिट का जैसे कोई भी क्लोन करना हो, क्लोन कर लिए, फिर उस वेबसाइट को हम कैसे गिटहब पे पुश करते हैं, किसी के प्रोजेक्ट में कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं यूजिंग गिट्स कमांड, तो वो सब हम देखने वाले हैं इसमें। जस्ट वेट एंड सी। ओके, so we'll cover the git installation process. Okay, I hope you understand. Okay, now we'll see just wait. Okay, why it's not working? Okay, version control git. We'll see git version, git init already done, git add dot already done. Okay, it's track the file and them. Okay, and now it's introduction to, so ये सब हम बाद में देख लेंगे, जब हम गिटहब पढ़ेंगे ना तब इसको हम कवर करेंगे। और गिट्स कमिटिंग मैसेज का हम देख लिए। स्टेजिंग एरिया, ओके, सो स्टेजिंग एरिया गिट में क्या होता है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम अपना जो भी थ्योरी पार्ट्स है उसको भी साथ साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे जैसे कि हम जैसे ही गिट कमिट करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम गिट ऐड किए, ठीक है, तो गिट ऐड करते हमारे लिए एक स्टेजिंग एरिया बन गया। क्या बन गया? गिट स्टेजिंग एरिया बन गया, ठीक है। और जैसे ही हमारा स्टेजिंग एरिया बना, अब कोई भी हम चेंजेस करेंगे, कोई भी मैसेज देंगे तो वहाँ पे हमारा स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टेजिंग एरिया। ये हमारा गिट लॉग, गिट वन लाइन ग्राफ, ओके, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ से हमारा शुरू होता है गिटहब। तो गिटहब के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर बेस्ट, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके, विद गिटहब। Okay, so we'll see all about git, okay. So we all see in git like how you can create a folder structure using git, okay. And we all see how you can initialize your git, okay, and all the things, okay. So in this topic we all cover GitHub in details, how you can upload your project within with the two methods, vi upload and vi command line, okay. And wait just a second, I'll open my just wait a second, I'll open my account, GitHub account. Just a second, it's open, okay. Okay, here you can see my profile of GitHub, okay. So we'll see how you can make a repository on GitHub. If you don't have an account of GitHub, please comment, I'll make a separate video. And already I have make on this video on this topic GitHub. I'll give the link in I button and also in description, okay. So you go through that and make a account. After make your account, you may come on my profile and follow me for more updates and project help, okay. So हम दो मेथड से देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को दो मेथड से अपलोड कर सकते हैं और कौन सा मेथड बेस्ट होता है जो रिक्रूटर को पसंद आता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद रिक्रूटर हूँ, ओके, एंड बहुत सारे कंपनीज में मेरे रेफरल्स भी हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं जॉब रोल के साथ, ओके। एंड ऑल्सो आई एम हायरिंग विथ फॉर माई टीम्स, ओके, यू ऑल्सो नो what I am saying, okay. Okay, so first of all you make your account on GitHub, okay, and then come on our GitHub account. एंड सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हम GitHub पे अपना रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी में हम किसी भी फाइल को GitHub के थ्रू कैसे अपलोड करते हैं ना, विदाउट GitHub कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। ये दो मेथड हो गया। उसके बाद हम GitHub के जितने भी रेपो हैं, प्रोजेक्ट है, पैकेज है, स्टार कैसे करते हैं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम ये देखेंगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर अपने टीम के साथ, जो हमारे टीम है उस टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास 4 बंदे हैं, मीन्स 4 टीम्स है एंड आपके अलग अलग वर्क्स हैं, जैसे कोई बैकएंड कर रहा है, कोई यूआई कर रहा है, या भी कुछ भी कर रहा है, कोई सीएसएस लिख रहा है, तो आप एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हो यूजिंग गिट एंड गिटहब। ओके, तो ये सब हम देखने वाले इसमें एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आई रिक्वेस्ट यू फॉर see this video till the end without skipping. Okay, so without wasting your time, let's get started. So first of all, come on our profile, go on your repository, and the most exciting opportunity for you if you are a developer and looking for a project that help you to contribute and you want to a project to start your open source journey. So I'll give this project link in your description. You will come through that. Here you can see I have already 51 star, and this is my project. Okay, and 53 fox, and we all see how it works and what is that and what I am saying. Okay, we all cover. ओके, सो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या, आप इसमें कंट्रीब्यूट करके वो क्या मिलेगा। ठीक है, अगर पढ़ाएं तो कुछ तो होना चाहिए आपके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होगा, है ना। तो ये प्रोजेक्ट आप ले लो फ्री में, मीन्स फ्री में नहीं है, पेड भी नहीं है। मैं आपको इसका एक्सेस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए, और कुछ नहीं है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आए हुए हैं, यहाँ साइनिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे फीचर है, देख सकते हो। अभी चलते हैं बैक, चलो अब चलते हैं बैक, चलते हैं हम रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। एक बैक आ गए, यहाँ पे आप रेपोजिटरी में आ गए, यहाँ हियर यू कैन सी द न्यू, क्लिक ऑन न्यू बटन। ओके, हियर यू कैन सी, राइट डाउन योर प्रोजेक्ट नेम. So I'll simply add clubs, and here you can see write any description, not any description, you write only related to your project. Okay, make it public, add a readme.md file. Okay, if you have not already. Okay, so now click on create repository. So click on repository. After you create the your repository, here you can see the interface, and this is the important for push your code to VS Code, push your project to VS Code from your repository. Okay, so without learning about that, we all cover our theory parts also. Okay, so a better understanding. So I'll come on our GitHub. So GitHub is a cloud based platform that stores, share and work together with other to write code. Okay, so जो हमारा GitHub है वो उस पर हम अपने टीम के साथ कोलैबोरेट करके वर्क कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वो। ठीक है, एंड ये जो आपका वर्क है वो क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा, आप कहीं भी आप इसको लॉगिन करके देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ऑल्सो आप लिंक भेज सकते हैं अपने रिक्रूटर्स को एंड अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कास्टिंग कोड दैट अलाउ ऑफ वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन, एंड इट्स नेम एज चूजन एज अ कंपाउंड ऑफ गिट एंड गिटहब। ठीक है, सो इसका नाम जो है वो गिट एंड हब, मीन्स गिट जो हमारा जो अभी पर है, हब मतलब पूरा गिट का हब है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जस्ट प्ले दिस, यस। सो व्हाट इज रेपोजिटरी? सो रेपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, हम लोग उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। डेवलपर की भाषा में क्या बोलते हैं? रेपो बोलते हैं, रेपो। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है रेपोजिटरी, अ फोल्डर लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑल योर नेसेसरी फाइल्स। ओके,
can contain folder, image, file, etc, anything in want. Okay, so move. What is branch? Oh sorry. Okay, what is branch? Okay, so we'll see what is branch. The branch concept in Git, like your to work on a new feature of fixed issue without exporting the main code. If your changes in the branch are good, you can merge them into the main code. If not, you can make improvement without affecting the main code base. भैया इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये समझ नहीं आया। ठीक है, हम समझाते हैं। देखो, जो हमारा जो दो मेन ब्रांच होता है, पहला हमारा होता है मेन ब्रांच। ठीक है, पहला हमारा मेन ब्रांच होता है, दूसरा हमारा होता है मास्टर ब्रांच। ये हमारे दो मेन ब्रांच होते हैं गिटहब के। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, आपका अगर गिटहब पे जो कोड अपलोडेड है वो आपका अगर मास्टर ब्रांच में है या फिर आपका मेन ब्रांच में है, ठीक है, और आपके टीम को आपके प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में मुझे कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे करेंगे कंट्रीब्यूट, ये मायने रखता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया ब्रांच कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके रेपो को फॉर्क करेंगे। फॉर्क मतलब तुम्हारा जो भी कोड है वो मेरा हो गया। अब मीन्स तुम्हारे प्रोजेक्ट को कोई इफेक्शन नहीं होगा, कुछ कोड में एरर नहीं आएगा, जो भी हम चेंज करेंगे वो मेरे में रहेगा, तुम्हारे कोड में कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेन कोड है वो हमारा सेफ रहता है, एंड जो हम फॉर्क करते हैं एंड फॉर्क करके उसमें हम जो भी वर्क करते हैं उसमें इफेक्शन आता है। ठीक है, तो जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और अब मुझे लग रहा है कि मेन कोड में इसको जाना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मेन ब्रांच बना लेते हैं एंड उसको हम पुश कर देते हैं, मतलब पीआर कर देते हैं, पुल रिक्वेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो उस पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं तो जो भी हमारा रिव्यूअर है, जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, वो देखता है कि अगर ये सही से चल रहा है, ये कोड अच्छा लिखा हुआ है, तो वो मर्ज कर देता है। तो वो उस मर्ज जब हो जाता है तो वो उस ब्रांच को डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है हमारे मेन ब्रांच में। यहाँ तक समझ आया ब्रांच क्या होता है? चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है और मुझे वर्क करना है फीचर्स पे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी हम पुल करेंगे अपने कोड को, तो एक हम ब्रांच बनाएंगे फीचर नाम से। ठीक है, तो हमारा जो ऑथर है, जो प्रोजेक्ट का ऑथर है, उसके पास जाएगा फीचर ब्रांच से कि ये जो ब्रांच है वो फीचर का है, तो वो देखेगा, वो अगर वो अप्रूव्ड कर देगा तो वो फीचर हो जाएगा मेन ब्रांच में जाके मर्ज। ओके, सो ये होता है हमारा ब्रांच। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ व्हाट इज पुश? सो अपलोड लोकल चेंजेस टू रेपोजिटरी। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हम ब्रांच को क्या कर रहे हैं, ब्रांच बना रहे हैं और उसको हम पीआर कर रहे हैं, मीन्स भेज रहे हैं उस मेन ब्रांच में। वो कैसे भेज रहे हैं, किसके थ्रू भेज रहे हैं? वो भेज रहे हैं हम पुश करके। ठीक है, सो द गिट पुश कमांड इज यूज टू सेंड लोकल कमिट एंड चेंजेस टू अ रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी का मतलब क्या हो गया? रिमोट रेपोजिटरी का मतलब हो गया कि हमारे जो गिटहब के अंदर जो हमारा मेन रेपोजिटरी है उसमें अपना लोकल भेजना। जैसे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉपी किए, हम अपने लोकल होस्ट में जो भी काम किए हैं, अब उसको तुम्हारे में भेजना है, तो वो हम रिमोट रेपोजिटरी उसको बोल देंगे। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया, चलिए अच्छा बात है। ओके, so keep remote and local repository in scenes. Okay, it's ensure that the remote repository stay updated with the latest local changes, enabling collaboration among team members or sending your work across different devices. Okay, I hope you understand कि पुश क्या करता है। ओके, सिंपल सी बात है, जो भी हमारा लोकल होस्ट में है उसको उठा के गिटहब के मेन ब्रांच में पुश कर देता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हम देखेंगे, डोंट वरी। थ्योरी पार्ट तो कवर कर लें दो यार। ओके,
अब बताओ पुल क्या होता है, कुछ देख लिए। अब पुल क्या होता है? सो git pull is a command which is used to change which are present in the remote repository to the local repository. It will fetch the changes and merge with the repository. ओके, गिट पुल क्या करता है? गिट पुल हम यूज करते हैं ताकि हम जो भी लोकल चेंजेस जो भी हुआ है उसको देख सकें, ठीक है। सो इट विल फेच द चेंजेस, ये क्या करता है? जो भी चेंजेस हुआ है उसको फेच करता है कि क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया है, एंड देन उसको हम मर्ज कर देते हैं अपने मेन ब्रांच में, ठीक है। इसके लिखने का मतलब क्या है? गिट पुल उसके बाद रिमोट नेम। रिमोट नेम का मतलब क्या हो गया? जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट को फॉर्क किए हैं, फॉर्क किए हैं, उस प्रोजेक्ट का लिंक, रिमोट नेम। उसके बाद आपका ब्रांच नेम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्क? आ गया फॉर्क। फॉर्क क्या होता है? A fork on GitHub is a copy of your repository that allow you to make changes without affecting the original project. Okay, fork is a making of a repository. आपका जैसे आपका अगर कोई फोल्डर है, ठीक है, तो जैसे हम इसको जिप फोल्डर कर देते हैं ना, जिप, और जिप करके किसी को भेज देते हैं, तो आपका जो भी फाइल है वो अफेक्ट नहीं होता है ना। तो सेम प्रोसेस भी यहीं पे है कि हम उसको फोक कर देंगे और उसमें कुछ भी हम काम कर सकते हैं, और जिसका फोक किया उसको, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब आ गया ना पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? पीआर कर रहे थे भैया, पीआर, ठीक है। चलो, पुल रिक्वेस्ट इन गिटहब। पुल रिक्वेस्ट एक्चुअली होता क्या है? तो जब भी हम नया किसी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको मर्ज करने के लिए जो भी हम ब्रांच बनाते हैं नया, जैसे हम फीचर ब्रांच बनाए, ठीक है, और उसको हमको मेन कोड के साथ में अटैच कर देना है, मुझे लग रहा है कि ये फीचर वर्क करेगा उसके साथ, तो उसको हम पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर देखता है जो जिसका भी कोड है और वो मर्ज कर देता है, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट एक्ट एज अ चेक पॉइंट दैट इंश्योर ओनली थ्रू आउट रिव्यू एंड टेस्टेड कोड मेक इट्स वे इनटू मेन ब्रांच। ओके ओके, तो पुल रिक्वेस्ट तक तो हमारा कवर हो गया थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल में, ठीक है। सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। ओके, so come on our repository and here you can see I am zooming and echo. What is echo? आपको याद होगा, अब मैंने बताया था आपको गिट के क्लास में कि इको क्या होता है। हम दो टाइप से वहाँ पे राइट कर सकते थे, एक उसमें से इको था, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गिट इनिट वी ऑलरेडी डन। अगर आपके पास रीडमी नहीं है तो आप उसमें रीडमी ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद कमिट मैसेज देना है, उसके बाद एक ब्रांच बनाना है, ठीक है। उसके बाद गिट रिमोट जो बताए थे, ठीक है, उसको रीजन में ऐड करना है इसको, एंड उसके बाद पुश कर देना है मेन ब्रांच में, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। चलते हैं पहले अपने VS कोड में। अब यहाँ से ओपन कर लिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा कोड क्या है? गेट इनिट। इनिट का मतलब आपको पता है, गेट इनिशियलाइज, ऑलरेडी इनिशियलाइज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गिट ऐड, ये ऑलरेडी ऐड है तो गिट ऐड, ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? मैसेज पास करेंगे कि गिट कमिट -m and give message for testing. I'll write for testing and close the bracket, press enter. On branch nothing commit to work. Okay, just a second. Here you can see we are applying git init, git add dot and git branch name in main, क्योंकि हमें अभी मेन में करना है, ठीक है। एंड वी आर आप कहोगे कि भैया आप यहाँ ये लाए कहाँ से, ठीक है। तो आप चले आओ यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो, ये सब हमें जब रेपो बनाओगे ना तो ये हमें खुद देता है, तो स्टेप बाय स्टेप कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब ये हमारा हो चुका है गिटहब पे पुश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सारा कोड दिखने लगेगा। जस्ट वेट अ सेकेंड एंड हियर यू कैन सी मेरे जितने भी कोड थे वो सारे दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं, ठीक है।
अब देखेंगे हम कि किसी भी जैसे कि अब आता है बारी कि हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इश्यूज क्या होते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, इतना ही समझना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमको इशू क्या होता है। इशू में गए, ठीक है, एंड ये देखो यहाँ पे है हमारे लेबल्स, ये आ गए लेबल्स। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हैं एंड इशू बना रहे हैं तो आपको उसमें लेबल लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो। अब लेबल में क्या क्या आ गया, बग। बग का मतलब क्या हो गया कि जो आपका कोड है ना, कोड, उस कोड के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं बग। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप उस कोड में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं रीडमी के अंदर तो वो आ गया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, डुप्लीकेट, अगर कुछ भी उसमें डुप्लीकेट है, एक्स्ट्रा पार्ट लिखा हुआ है, उसको आप हटाना चाहते हैं, डुप्लीकेट में आ गया। एनहांसमेंट, नया फीचर ऐड करना है, एनहांसमेंट। गुड फर्स्ट इशू, मतलब जो आसानी से सॉल्व हो सके, मीन्स इजी, कलर चेंज करना, बटन पे हॉवर इफेक्ट लगाना, नैबर पे कलर लगाना, ये सब। ठीक है, हेल्प वांटेड। ठीक है, हेल्प वांटेड का मतलब होता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए एक सेक्शन बनाना है जहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ समथिंग समथिंग हो। ओके, एक्स्ट्रा अटेंशन इज नीडेड। उसके बाद आता है इनवैलिड, डज नॉट सीन माइट राइट नाउ, क्वेश्चन एंड जो भी हो। और जैसे कि जैसे कि मेरा है, मैं अगर एसटॉक में हूँ, सोशल समर ऑफ कोड, एज अ प्रोजेक्ट एडमिन, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेवल बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे लेवल का नाम लिखेंगे, जैसे हम लिख दिए एसटॉक। ठीक है, यहाँ से आप कलर चूज कर लो, यहाँ पे आप जाओ, कलर पिकर पे जाओ, कलर आ गया, यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लो, जैसे येलो चेंज कर लिए। यहाँ पे लिख दो कुछ भी अपना, जो भी डिस्क्रिप्शन है, ऐसा कर दो क्रिएट। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी स्टॉक इज अवेलेबल। ओके, सो कंग्रेचुलेसन, यू फर्स्ट क्रिएट योर लेबल्स। अब देखते हैं कि हम इशू कैसे क्रिएट करेंगे। इशू में आ जाओ। ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जाएंगे यहाँ पे इशू में जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट एनालिसिस, जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा है उसको एनालिसिस करो। ठीक है, उसमें एरर फाइंड करो कि क्या है क्या नहीं है कोड में। अगर आपको उसमें अच्छा कुछ मिल जाता है, गुड फर्स्ट इशू कुछ भी मिल जाता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, तो उसका एक अच्छा सा टाइटल, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना लो। ठीक है, उसके बाद लिखो। ठीक है, चलो अब मैं एक तुमको बना के दिखाता हूँ। ओके, सो इन टाइटल यू राइट रिलेटेड टू योर बग एंड एनहांसमेंट, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि अपडेट readme .md फाइल। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। ओके, आप एक स्पेशल रीजन दे देना। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी अ लेवल। ओके, लेवल पे क्लिक करो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो भी लेवल आपको लग रहा है कि ये हो सकता है तो आप यहाँ से लगा लो। मैं यहाँ से गुड फर्स्ट इशू लगा लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे लेवल आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे क्रिएट। ठीक है, कंग्रेचुलेसन एवरीवन, यू आल बी वन स्टेप अहेड टू योर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। ओके, सो ये हमारा क्रिएट हो गया पहला इशू, हियर यू कैन सी। ओके, ठीक है, तो अब हम चलेंगे कंट्रीब्यूशन के लिए दूसरे के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं किसी और का प्रोजेक्ट। ओके, हियर यू कैन सी आई एम ओपन another folder of anyone of project. Okay, so what I'll do, I'll make it a star if I found it helpful. Okay, so अगर आप चाहते हैं कि किसी के भी प्रोजेक्ट में आप कुछ भी क्रिएट करो, सबसे पहले आप जाओ इशू में। ठीक है, इशू में जाओ, सबसे पहले इशू जनरेट करो। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे
न्यू सी में जाते हैं एंड हम लिख देंगे कि मुझे एक रीडमी फाइल चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये क्या आ गया, इसको डिलीट, ठीक है। इसको हम कॉपी करके इसको ही पेस्ट कर देंगे। आप क्लियरली लिखना, ठीक है, हमें डेमो के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेवल में जाओ, जस्ट सेकेंड, अच्छा ओके, लेवल वो लगा लेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक। सो क्रिएट करो यहाँ से, ये हमारा इशू हो गया क्रिएट, ठीक। अब आ जाओ कोड में, ठीक है। कोड में आने के बाद सबसे पहले इसको करना होता है फॉक, ठीक। क्लिक करो फॉक पे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्रिएट करो फॉक। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो गया, अब इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉक, ठीक है। अब यहाँ कोड पे जाएंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो गया, ठीक है। अब ओपन करो अपना कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। सबसे पहले आ जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और लिखना है गिट क्लोन, गिट क्लोन space and paste the link and press the enter. Just a second, what will this path chat is already exist. Just a second, chat app is already in. Okay, so simply I'll copy this. ओके, तो हम दूसरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना। चलो बैक चलते हैं तो हम करके बताते हैं। नाउ कम ऑन योर कमांड प्रॉम्प्ट एंड राइट डाउन गिट क्लोन, ओके, एंड पेस्ट द लिंक। ओ सॉरी, आई एम नॉट पेस्ट कॉपी द लिंक, सो आई विल कम ऑन दिस, ओके, एंड जस्ट गो द बैक, just wait a second। मुझे जाना पड़ेगा अपने रिपोजिटरी में, जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, सो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब चलना हमको कार्ड में, ठीक है। ये आ गया पेमेंट कार्ड जिसको हमने फॉक किया था, ठीक है। अब इसका हम कर लेंगे कोड कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लिए। अब आएंगे हम अपने सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में, CMD में, यहाँ से हम ओपन कर ले अपने CMD को, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे गिट क्लोन पेस्ट द लिंक एंड प्रेस द इंटर। इट्स स्टार्टिंग द क्लोन, ओके। राइट डाउन द फाइल फोल्डर नेम क्लोन, Ctrl+C, एंड मैंने आपको सिखाया था किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो क्या करना है, CD Ctrl+V, प्रेस इंटर। एंड VS कोड ओपन कैसे होता है, तो कोड डॉट प्रेस इंटर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। VS कोड ओपन हो गया, ठीक है। टर्मिनल को ओपन, कुछ चेंज कर लेते हैं, रेडमी में कुछ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं, फिर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर यू कैन सी फॉर रेजिंग अ PR। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन माई टर्मिनल, आई विल मेक इट अ फुल स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे ही, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले चेकआउट किया। मुझे मेन ब्रांच में जाना है, तो मेन ब्रांच पहले से एग्जिट कर रहा था, तो हम उसमें मास्टर में चले गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि एक नया बनाए फीचर कार्ड कलर चेंज। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको PR रेज करना होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक नया ब्रांच बनाते हैं। जब हम ब्रांच पढ़ रहे थे तब हम पढ़े थे कि हम एक नया ब्रांच बनाएंगे, ठीक है, एंड उस ब्रांच के थ्रू हम PR रेज करेंगे। तो अब वो PR जब हमारे रिव्यूअर रिव्यू करेंगे एंड ये कोड उनको पसंद आएगा, रीडमी उनको अच्छा लगेगा, तो वो मर्ज कर देंगे। जब वो मर्ज करेंगे तो वो मेन ब्रांच के साथ में मर्ज हो जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो गिट चेकआउट -B मतलब ब्रांच फीचर / कार्ड कलर, आप कुछ भी रख सकते हो। दिस इज अ नेम ऑफ ब्रांच, ओके। उसके बाद हमने सिंपल जो आपको पहले पता है कि ऐड किया, ठीक है। उसके बाद कमिट कर दिया मैसेज से, ठीक है। उसके बाद पुश कर दिया, गिट पुश ओरिजिन फीचर जो भी हमारा ब्रांच बना था, ठीक है। पुश आपको पता है ऑलरेडी,
अब देखो ये हमें क्या दिया, ये हमें एक लिंक दिया है। हियर यू कैन सी इट्स गिव अ लिंक एंड हियर यू कैन सी इट्स गिव अ, जूम नहीं हो रहा है, ओके। सो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, just a second, control click, publish branch, click on this, just a second, okay। so now अगर इसको हम बंद करते हैं अभी, इसको अभी नीचे ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे VS कोड में ही ओपन हो गया, ठीक है, कि आप कैसे करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि VS कोड में उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ कर लिए, ठीक है। एंड ये जो हमारा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट है इसको कर लिए हम कॉपी, ठीक है। जस्ट वेट एंड नाउ हियर यू कैन सी when we raise a PR on the your profile of GitHub, here you can see compare and pull request. To click on this, okay, and here you can see view pull request, okay, and now I'll click on view pull request, okay. No description, we okay, it's done, it's done through the it's done through VS code, okay। so I'll give a description in this। so अपना जो पहला इशू था वो क्या था, H1, ठीक है, इशू 1 था, तो उसको हम कहते हैं H1, ठीक है। ये आ गया नीचे H1, इसको सिलेक्ट कर लिए। इशू issues are closed, ओके। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी नीड हो तो आप आस्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर दिए कमेंट, ठीक है, तो रिव्यूअर अब इसको पढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा अपने तरफ से रिव्यू, ठीक है। अब देखो अगर हम चलते हैं, जो हमारा ये कोड था ना, ये वाला, ये मेन जो कोड था हमारा, इसमें देखो ये पुल रिक्वेस्ट आ गया है, ठीक है, readme.md करके ये पुल रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। मेरे में ये ऑलरेडी VS कोड लगा, वर्सल का बोट लगा हुआ है, इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अगर इस पे 1 पे क्लिक करें तो इस हमको इशू टैब पे ले जाएगा, देखो इशू पे ले आया, दैट्स आपको मेंशन करना जरूरी होता है। तो ये था हमारा ओपन सोर्स का दूसरा स्टेप, PR रेज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। PR रेज करना आना ही चाहिए। सो इशूज हो गया, पुल रिक्वेस्ट हो गया, चलो अब देखते हैं एक्शन क्या होता है, तो वो देखेंगे हम अपने प्रोजेक्ट में, ओके। सो नाउ कम ऑन माई repository, so I'll come on my repository and go on my any project, okay, I'll go on budget body। लेकिन बजट बॉडी में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं पहले हम अपने करियर एज में, ठीक है, और रेपो में करियर एज में, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है कंट्रीब्यूशन, इसलिए चलो ओके। पुल रिक्वेस्ट समझ लिए, चलो समझते हैं डिस्कशन क्या होता है। आज पूरा समझ लेंगे, ठीक है। देखो डिस्कशन में क्या होता है, अगर आप आपका प्रोजेक्ट जो है सिलेक्टेड है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए सिलेक्टेड है, तो उसमें आप डिस्कशन एक अलाउ कर सकते हो, जहाँ पे आपके जितने भी कंट्रीब्यूटर होंगे वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल कम ऑन एक्शन बटन, ठीक है। ये सारे एक्शंस है जो बॉट के थ्रू होते हैं, ठीक है, आप लेबल लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो एक न्यू है, न्यू वर्क फ्लो, यहाँ पे जाएंगे, न्यू वर्क फ्लो पे आ गए, जस्ट अ सेकेंड, इट्स वर्किंग ऑन, यस। अब यहाँ देखो सजेस्टेड फॉर दिस रिपोजिटरी, ये सब है, डिप्लॉयमेंट के लिए ये सब सजेस्टेड है। सिक्योरिटी, ये देखो सिक्योरिटी के लिए क्या है, सोनार क्लाउड, ठीक है,
अब देखो, आई सजेस्ट कि अगर आपका प्रोजेक्ट ओपन सोर्स में है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी आपके प्रोजेक्ट पे पीआर रेज करे, ठीक है, तो वो कोड रिव्यू होना चाहिए कि उसमें कोई एरर है क्या। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कर दोगे कॉन्फ़िगर। जैसे ही कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे, ये पूरा का पूरा कोड खोल के आएगा उसका, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सोनार क्लाउड के वेबसाइट पे जाओ और सिंपली लॉगिन कर लो, ठीक है। एंड यार यू कैन सी ये वर्क कैसे करता है। यहाँ से जैसे कमिट करोगे आपके फाइल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स आपका काम सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट अप्लायमेंट सब A to Z, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल वर्क फ्लो डैट मैनुअल ट्रिगल, इसको भी, ठीक है। ये लेबलर, लेबल क्या होता है हम समझाएं, लेबल कैसे बनता है, कौन कौन से लेबल होते हैं। तो अगर इसको कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो जब भी कोई पीआर रेज करेगा उसको ऑटोमेटिक लेबल लग जाएगा, ठीक है। एंड ये है AI इशू समराइजर। कोई भी आपके इशू जाता है ना, तो उसमें आपको हेल्प करेगा कि इशू किससे रिलेटेड है। अगर उसमें थोड़ा बहुत गलती लिखा हुआ है ना, तो आपको समराइज करके देगा, ठीक है। चलो आपको हम वो अब दिखाते हैं कि वो दिखता कैसा है। चलो अब हम कोई भी पीआर खोल लेते हैं, कोई भी पीआर ओपन करते हैं। जैसे ये पीआर है, ठीक है, एज अ प्रूफ तुमको दिखा रहे हैं, ये पीआर है, ठीक है। ये वर्सल का मैंने किया हुआ है और ये हुआ है, ये हुआ, ठीक है। अब देखो ये इसका ये आया, ये वीडियो आया। अब देखो यहाँ पे ये देखो क्या है, सोनार क्लाउड है, ठीक। अब ये पीआर मेरे पास आया है, ठीक है। अब मुझे कोड रिव्यू करने की जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे दिखा रहा है कि 31 गो इश्यू फाउंड हुआ है, ठीक है। मीन्स कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। तो ये है हमारे ऑटोमेशंस का कमाल, हमें कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सोनार क्लाउड। अब देखो जो लेबलर था, जो AI था, वो कैसे वर्क करता है। जैसे हम इंटरव्यू प्रेप पे गए और मैंने ये दिया था इसको प्रॉम्प्ट सिंपल सा, इसने ये लिख के दिया कि एग्जैक्टली क्या चाहता है बंदा। तो ये है गिटहब इन एक्शन, ये इसी को कहते हैं वर्क फ्लोज। अगर आपको वर्क फ्लोज के बारे में सीखना है कि वर्क फ्लोज कैसे लिखते हैं, स्क्रैच से कैसे बिल्ड करते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। आप कमेंट करना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ तक देख लिए कि ये क्या होता है, ठीक है। एक्शंस देख लिए क्या होता है। चलो अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम थ्योरी भी पार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। देखो बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या होता है हम बताते हैं। प्रोजेक्ट हम इसलिए बनाते हैं, अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें आप छोटे छोटे पार्ट इसमें बना सकते हो, ठीक है। कि आज हम टू डू लिस्ट बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, उसको कंप्लीट कर सकते हो सिंपली, ठीक है। यहाँ पे हम गए रोड मैप बनाना है हमको, ठीक है। यहाँ पे अपना डाल दो क्या बनाना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्रिएट कर लो। ये क्रिएट हो गया, गॉट इट कर दो। आपको जो करना है यहाँ से न्यू इशू बनाओ, इसमें ऐड करो, यहाँ आइटम डालो, यहाँ पे कुछ भी ऐड करो, इंटर कर दो, ठीक है। ये सब हो सकता है। ये आ गया, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने आ गया, दैट्स गुड। अब चलते हैं हम वाईकाई पे। वाईकाई क्या होता है, बैक हो जाए यार, ओके। चलो अब वाईकाई पढ़ते हैं, वाईकाई क्या होता है। तो वाईकाई जो है उसमें हम एक डिटेल्स में बताते हैं कि वाईकाई क्या होता है। मीन्स वाईकाई में बताते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो करता क्या है, पूरा डिटेल्स में सिंपली, ओके। ठीक है, अब चलते हैं हम इनसाइट्स पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इनसाइट्स में क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या 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 हुआ है, कम्युनिटी में क्या है, ठीक है। देखो कम्युनिटी में क्या है, कैसे है, ग्राफ क्या चल रहा है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं इसमें, आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं, कौन कौन कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, देखो उनका सारा डिटेल्स मिल जाएगा तुमको, यहाँ से देख सकते हो। ट्रैफिक क्या है आपके इस रेपोजिटरी पे, वो देख सकते हो। देखो 15, 40, देखो अमित कुमार डेमो पे यूनिक विजिटर हैं 131। देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसपे 336 व्यूज़ हैं एंड 131 को न्यू विजिटर है, मीन्स 131 नए लोग आए हैं, ठीक है।
चलो ये था हमारा ऑल अबाउट गिटहब। ओके, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से आप नया रिपोजिटरी बना सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, और कोड बेस में जा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, यहाँ से अपना गिटहब का को पायलट ओपन कर सकते हो, यहाँ से अपना इशू बना सकते हो, जो पुल रिक्वेस्ट है यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, यहाँ से अपना पुल रिक्वेस्ट यहाँ से देख सकते हो। ये आ गया पुल रिक्वेस्ट, मीन्स नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट गिटहब। अब चलते हैं, हम अपना देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? तो आपको हम जो भी बताया ना, किसी के प्रोजेक्ट में इशू बनाना, ओपन सोर्स मीन्स पीआर रेज करना किसी के प्रोजेक्ट में, ठीक है। मीन्स कुछ ना कुछ किसी के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर देना ओपन सोर्स हो गया, ठीक है। तो open source is a term that refer to a software that credit and shared with the intention that anyone can view the source code, modify the code and distinct the code, की फीचर ट्रांसपेरेंसी आप पढ़ सकते हैं। मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको एज अ नोट यूज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप, बैक। व्हाट इज गिटहब एक्शन? जो अभी हम बताए थे, जो ऑटोमेशन होता है। सो गिटहब एक्शन इज अ CI/CD मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट टूल बिल्ड इनटू गिटहब। मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे वर्क फ्लो बना दिए ना एक्शन का, जैसे मेरा लेवल था, लेवल ऑटोमेटिक लगा देगा, AI ऑटोमेटिक इशू पर लेगा, ठीक है, कोड रिव्यू कर लेगा। ये था हमारा एक्शन, जो हम खुद से भी लिखते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। ओके, एंड इसका जो एक्सटेंशन होता है .yml, हियर यू कैन सी .yml एंड .yaml। ओके, नेक्स्ट स्टेप, की फीचर आप पढ़ सकते हो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गिटहब एक्शन आपको बताती है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो इसका फोल्डर में .github होता है, ठीक है। गिटहब के अंदर वर्क फ्लोज बनता है एंड वर्क फ्लोज के अंदर .yml करके आप इसको बना सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ये सब स्टेप्स हैं। एंड ये आप YKI के बारे में जो बताए थे वो पढ़ सकते हो, ये बेनिफिट्स है, ठीक है। ये हम अटैच कर देंगे, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, एंड थैंक यू। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। विल आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया गिट एंड गिटहब। ओके, सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज मोटिवेट मी टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज ओनली फॉर यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय।